सिक्स सेमेस्टर विच वॉज माई लास्ट सेमेस्टर एंड माई लास्ट चांस जिस पर मैं अपनी CPI 7 के ऊपर कर सकता था, माई CPI केम आउट टू बी 7.02, just 0.02, and I'll tell you that this 0.02 landed me a 20 plus LPA job. Hello everyone, मेरा नाम अनुराग सिंह ठाकुर है. I'm a recent college graduate from NIT Raipur, and today I have written some script जो कि आपको हेल्प करेगा on your placement journey. So I tried a lot, but I think ये सब चीज़ों के लिए एक स्क्रिप्ट की ज़रूरत नहीं होती, एक कहानी की ज़रूरत होती है. तो ये है मेरी कहानी. ओके, सो द पर्पज़ ऑफ द वीडियो इज़ दैट आई विल शेयर माई एक्सपीरियंसेस, और जो भी मैंने गलती की थी आप उससे सीख सके, और आपकी जो प्लेसमेंट सीज़न जो अभी स्टार्ट होने वाली या स्टार्ट हो चुकी है उसमें आप ये सब ना दोहराएं. तो द स्टोरी स्टार्ट्स इन 2023. Our placement season started in July 2024. So, and that was the end of the 6th semester and the starting of the 7th semester. So, in 5th semester, my CPI was below 7. My CPI was 6.85, and I just had 2 semesters so that I can clear the basic cutoff. क्योंकि आप सभी जानते हैं, the most of the companies अपने जो फर्स्ट राउंड जो ऑनलाइन असेसमेंट राउंड होता है उसका जो कट ऑफ रहता है वो 7 रखते हैं. मोस्ट ऑफ द कंपनीज, देयर आर सम कंपनीज जो कि 8.5 रखते हैं, 8 रखते हैं, बट ऑल टुगेदर मोस्ट ऑफ द कंपनीज अग्रीड अपॉन 7. एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू हाईलाइट दैट देयर आर सम कंपनीज जो कि 6.5 भी रखते हैं, पर मेजोरिटी इट्स 7. सो द फर्स्ट टास्क वॉज to cross that barrier of 7. So here you can see my CPI. Like in 5th semester, like in 4th semester I had 6.85. In 5th semester I did 6.88, and then in 6th semester, which was my last semester and my last chance जिस पे मैं अपनी CPI 7 के ऊपर कर सकता था, my CPI came out to be 7.02, just 0.02, and I'll tell you that this 0.02 landed me a 20 plus LPA job. But this was not the end, it was the starting of a bigger thing, because the fight started from there. But just crossing the minimum cutoff is not enough, because I also have to perform on the online assessments, I also have to perform on the HR rounds, on the technical rounds, the group discussion rounds, and many more. So the first tip that I want to give you is keep your CPI good enough. I'm not the right person to say all this, but having experienced all these things, I think it would be good if you have 8 above CPI, but if you're not having, you have to leverage on other things. And what are these other things? I'll tell you later. And for those जिनकी CPI अभी 7 से नीचे है, 6 के ऊपर है, उनके नीचे वालों की तो you are not the core audience of this video. If you have below that, then I would say कि आपकी जो best possible move हो सकती है, like in chess you have the best possible move, और आपको वही ढूंढना पड़ेगा. You have to target companies जिनकी CPI थोड़ी कम है. You have to apply more, you have to have more on your resume, more projects, more hackathons, anything that distinguishes yourself from the different one. Like अगर दो बंदे हैं and they have both same capabilities on DSA and all, they will see the CPI. So you need something extra from your side. So that is the tip number 1, and let's move on to the next section. So having crossed the minimum cutoff barrier, the next thing comes was the preparation and the main interview part. So the first company that came into our campus was PhonePe, and I got shortlisted. There were a lot of rounds: the online assessment round, and then the group discussion round, and then first round of tech interview, second round of tech interview, and then an HR round. And I aced all of them, but I got rejected. So why I got rejected? Let's focus on that. Because the experience section, I think I can make another video out of it. So why I got rejected? The second tip I want to give is you should know the company profile. I thought it was coming for an SDA profile, and my resume was all SDA based, but it came for some data analyst or product management role. So you have to know the job description, the job requirements, and accordingly you have to tailor your resume. So that is the second tip. And also one more tip is that there is something called guess estimate.
सो दैट इज़ नीडेड. यू हैव टू प्रेडिक्ट, लाइक किसी ने तुमसे पूछ लिया कि लेट्स से आपके शहर में कितने रोड हैं या कितने ट्रैफिक लाइट है, सो यू हैव टू गिव अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन. आई हैव नेवर सॉल्व, बट आई यूज सम मैथमेटिकल स्किल्स एंड आई ट्राई टू एज. बट अगर मैंने उसे पहले पढ़ लिया होता, I think I would have given a more professional answer. So that is the first mistake which you should learn from. But after each interview, जो भी मेरे ड्रॉबैक्स थे मैंने उन पे काम करना स्टार्ट किया. मुझे गेस्ट एस्टिमेट नहीं आता था तो मैंने गेस्ट एस्टिमेट पढ़ा. मुझे एप्टीट्यूड पजल्स नहीं आते थे तो मैंने GFG के 100 पजल्स किए. जैसे जैसे इंटरव्यू हो रहा था, आई ट्राइड इम्प्रोवाइजिंग ऑन माई वीक एरियाज. सो द सेकेंड कंपनी केम and you know what, I got rejected. Okay, that was ZS. The third company came, I got rejected again. The fourth company came, the fifth company came, the sixth company came, and then I again got rejected. And then at the eighth company I got selected. What I think is that placement season is a long marathon. कंपनीज धीरे धीरे आती जाएंगी, धीरे धीरे शॉर्ट लिस्टिंग होंगी, धीरे धीरे आपके बेस्ट फ्रेंड्स और आपके जो ग्रुप है वो प्लेस होते जाएंगे और आपके अंदर वो प्रेशर बढ़ते रहेगा कि सबका हो रहा है, आपका बस नहीं हो रहा है. एंड दैट फीलिंग वॉज विथ मी फॉर अ लाइक लॉट ऑफ मंथ्स. पर उससे कुछ होने जाने वाला नहीं है. प्लेसमेंट सीजन में आप दूसरों की भी मदद करते हैं, खुद की भी मदद करते हैं. द थर्ड कंपनी दैट केम इनटू अवर कॉलेज वाज ओरेकल. इट वाज अ ड्रीम कंपनी, लाइक सबके लिए नहीं, मेरे लिए. तो उसका ऑनलाइन असेसमेंट राउंड हुआ, कोडिंग राउंड हुआ, चला गया, अच्छा गया. फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू हुआ. तो फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू में जो मेन डायरेक्टर थे, जो कि वो हायरिंग देख रहे थे, एंड ही वाज अ वेरी एक्सपीरियंस डायरेक्टर ऑफ ऑप्टम. ही वाज लाइक हैविंग 16 years ऑफ एक्सपीरियंस. तो उनसे मेरी 1-on-1 C++ और बहुत सारे कोडिंग क्वेश्चंस और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में डिस्कशन हुआ. इट वेंट रियली वेल. तो मेरा फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू हो गया. नाउ सेकेंड राउंड ऑफ इंटरव्यू हुआ. उसमें भी कोडिंग रिलेटेड लिंक लिस्ट बेसिक क्वेश्चन था. वो हुआ मीडियम क्वेश्चन, लाइक इट वाज समथिंग रिलेटेड टू द इंटरसेक्शन ऑफ टू लिंक लिस्ट, ऐसा कुछ था. आई विल पुट दैट इन डिस्क्रिप्शन. वो भी अच्छा गया. पर वी गॉट रिजेक्टेड. वी मतलब मेरा एक और दोस्त था जिसकी भी CPI जस्ट 7 के जस्ट थोड़ा ही ऊपर थी. एंड वी गॉट रिजेक्टेड सोली फॉर द लो CPI. बिकॉज बहुत हो सकता है, क्योंकि इट्स अ नेचुरल प्रोसेस. अगर बहुत सारे लोगों का फीडबैक अच्छा जा रहा है, इंटरव्यूज़ फीडबैक के ऊपर काम करते हैं. अगर बहुत सारे लोगों का फीडबैक सिमिलर जा रहा है, देन उसके लिए जो फैक्टर बन जाता है फिर CPI फैक्टर बन जाता है. इट इज़ वेरी रेयर बट इट इज़ वेरी मच पॉसिबल. बिकॉज प्लेसमेंट के स्टार्टिंग में बहुत सारे लोग प्रिपेयर्ड होते हैं और जैसे जैसे लोगों की प्लेसमेंट लगती रहती है, देन शायद थोड़ा कंपटीशन कम होता है, पर शुरू में, एंड इट्स अ फैक्ट. सो फॉर दैट रीज़न कीप योर CPI हाई. आई थिंक अब तो कुछ नहीं कर सकते, पर ठीक है जो भी है. द एक्स फैक्टर. सो द नेक्स्ट कंपनी जो कि कॉलेज में आई, दैट वाज अ स्टार्टअप बेस्ड आउट ऑफ बैंगलोर, जो कि परफॉर्मेंस बेस्ड था, बट इट वाज रियली नाइस पैकेज एज वेल. उसमें क्या गलती हुआ कि जो नए स्टार्टअप्स होते हैं, दे हैव मोर ऑफ इट, लाइक अ डेवलपर उनको ज़्यादा ज़रूरत होती है rather than just pure DSA. उनको डेवलपमेंट और बाकी जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस होता है वो ज़्यादा मैटर करता है. मुझसे गलती ये हो गई कि मैंने बस DSA ही इंटरव्यू के पहले पढ़ लिया. और द फर्स्ट क्वेश्चन दैट दे आस्क्ड वाज वेरी प्योर, बेसिक एंड वेरी फंडामेंटल जावास्क्रिप्ट. और उसमें मैं फंस गया बिकॉज मैंने डेवलपमेंट की थी. आई हैव ऑल्सो वर्कड ऑन द स्टार्टअप्स एज वेल. बट जब अचानक से जो कि आप एंटिसिपेट नहीं किए होते हो, सो देयर बिकम्स अ प्रॉब्लम. सो हियर वन टिप इज़ लाइक आप जो भी पढ़ रहे हैं उसके जो फंडामेंटल्स थिंग्स हैं, अगर आप जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं तो उसके जो अंदर की जो लाइब्रेरीज़ हैं, सेट टाइम आउट, ये वो जो बेसिक चीज़ें हैं, डॉम, वर्चुअल डॉम, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल. आप किसी भी चीज़ को पढ़ रहे हैं, आप C पढ़ रहे हैं, C++ पढ़ रहे हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है, जावा में क्यों डिफरेंस है, C+ में क्या डिफरेंस है, वो सब फंडामेंटल्स आपके क्लियर होने चाहिए. नॉट जस्ट कि आप बहुत बड़ा ही जस्ट जो कि एकदम जस्ट बाइनरी सर्च ट्रीज और जस्ट ये ट्रीज प्रायोरिटी क्यू, ये वो, दैट इज़ वेरी मच नेसेसरी. बट डेवलपमेंट में फंडामेंटल्स
जानना इज़ वेरी मच नेसेसरी, बिकॉज व्हेन यू वर्क एज एन एस डी और एज एन एस डब्ल्यू ई, आप प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी डेवलपमेंट बेस्ड. डी एस ए इज़ वेरी मच नेसेसरी, क्योंकि जो लॉजिकल स्किल्स हैं वो आपको देती हैं, बट कंपनीज कई बार डिमांड करती हैं. सो yes, the lesson. So going forward, for the 5th और 6th कंपनी, it was my mistake कि मैंने ज़्यादा एप्टीट्यूड ठीक से नहीं किया. बहुत ही हार्ड एप्टीट्यूड था. सो एप्टीट्यूड इज़ वेरी मच नेसेसरी, जिसके कारण मैं रिजेक्ट हो गया उस पर. नाउ द नेक्स्ट कंपनी दैट केम टू आवर कॉलेज वॉज Dassault Systems, हायरिंग फॉर SD प्रोफाइल्स. और इट वॉज लाइक मुझे ऐसा लग रहा था कि इट वॉज माई लास्ट चांस, क्योंकि ऑलरेडी 5-6 इंटरव्यू में मेरा रिजेक्शन हो ही चुका था. तो मैं सोचा कि अब इसमें नहीं होगा तो फिर किसी में भी नहीं होगा. मैंने बैठा उस पर, जो वे राउंड होता है वो निकला, उसके बाद फर्स्ट राउंड निकला, सेकंड राउंड निकला. तो ऐसे 3 राउंड्स ऑफ इंटरव्यूज़ हुए और सभी राउंड्स बहुत अच्छे जा रहे थे. लीड कोड हार्ड क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो मैंने बस स्टार्टिंग से पहला अप्रोच, दूसरा अप्रोच, फिर ऐसे उसको ऑप्टिमाइज़ करके बताया. सब अच्छा गया. इट वाज आल्सो अ हाई लेवल HLD इंटरव्यू. मैंने अच्छे से बताया अपना जो प्रोजेक्ट है. सो व्हाट हैपन्स इज समटाइम्स कंपनीज हैव डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स. सो फॉर दैट रीज़न, फॉर सम रीज़न, आई वाज रिजेक्टेड एज वेल, एंड आई थिंक आई रिजेक्टेड माई सेल्फ एज वेल कि अब तो कहीं नहीं हो सकता. 6th इंटरव्यू जा चुका है. अब इस CBI के साथ 0.02 के डिफरेंस के साथ मैं कहाँ जाऊँगा. एंड देन द लास्ट कंपनी केम, द लास्ट फॉर मी आई गेस, क्योंकि मैंने तो ये सोच लिया था कि अब 7.02 के CPI के साथ तो मेरा कुछ नहीं होने जाने वाला. तो कंपनी आई, हमने फॉर्म भरा, उसमें शॉर्ट लिस्टिंग हुई. उसके बाद एक ऑनलाइन असेसमेंट राउंड हुआ, उसमें कोडिंग क्वेश्चंस और MCQs थे, एप्टीट्यूड थे, वो सब दिया. उसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग और हुई, फिर HR राउंड हुआ. एक HR राउंड पहले हो गया. तो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे वो इंटरव्यू हो रहा था HR राउंड का. मैंने अपना ऑनलाइन लॉगिन किया और जैसे ही इंटरव्यूअर सामने आई, मेरे दोस्त का कॉल आया और इंटरनेट चला गया, क्योंकि मेरे मोबाइल पे वो सिस्टम था कि कॉल आता है तो नेट चला जाता है. ऐसे 2-3 बार हो गया, किसी ना किसी का कॉल आ ही गया. इंटरव्यूअर भी परेशान, मैं ज़्यादा परेशान कि अब तो गया कि HR राउंड में आपको इम्प्रेशन जमाना रहता है और इम्प्रेशन ही नहीं जम पाया. बहुत गंदा इम्प्रेशन चला गया. पर द इंटरव्यूअर वॉज वेरी चिल. मैंने उनको एकदम ऑनेस्टली बता दिया कि ऐसा ऐसा सीन था, आई एम वेरी सॉरी. तो वो सब चला गया एंड आई ट्राइड टू कंपनसेट दैट. तो मैंने क्या किया, आई ट्राइड टू कंपनसेट दैट. तो मैंने अपने एक्सपीरियंसेस बताना स्टार्ट किए कि आई एम वेरी लविंग, ये वो, विच आई एम, बट यू हैव टू टेल, बिकॉज इफ़ यू वोंट टेल किसी को पता नहीं लगेगा. सो वो इंटरव्यू हो गया और इंटरव्यू देने के बाद तो मुझे भी डर लग रहा था कि अब हो गया, मेरा नहीं होने वाला, क्योंकि बहुत गंदा इंप्रेशन चला गया. बट इट वॉज ऑल गुड एंड आई गॉट इन टू द लास्ट राउंड ऑफ टेक इंटरव्यू. सो ये बात है 9 नवंबर की बात है. सुबह जो हम लोगों का ट्रेनिंग प्लेसमेंट सेल का जो ऑफिस है, CDC करियर डेवलपमेंट सेल, वहाँ ये इंटरव्यू रखा गया था. सो आई केम इन, मैंने अपना दाढ़ी बनवा लिया, बाल कटवा लिए. एंड आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टिप कि अगर आप ग्रूम होके जाएंगे, आप थोड़ा प्रोफेशनल लगते हैं. सो द फाइनल डे केम और इंटरव्यू स्टार्ट हुआ. जो हमारा जो कॉलेज की CDC होती है, करियर डेवलपमेंट सेल, वहाँ पर ये इंटरव्यू ऑर्गेनाइज हुआ था. सो द इंटरव्यू स्टार्टेड एट 10 AM आई गेस. और द फर्स्ट क्वेश्चन जो इंटरव्यूअर ने मुझसे पूछा कि व्हाट डू आई नो अबाउट द कंपनी. और मैंने पहले से रिसर्च करके रखा था कि कंपनी क्या करती है, कैसी है, क्या है, ये है, वो है. एंड आई टोल्ड हिम इन अ गुड मैनर एंड ही वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड. कि उन्होंने कमेंट भी किया कि यू नो ऑल अबाउट दिस, सो इट्स वेरी गुड. सो आई थिंक दैट इम्प्रेशन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, बिकॉज कोई आपसे पहली बार मिल रहा है, जस्ट इंटरव्यू ले रहा है, अगर वो वाइब उनसे आती है कि लाइक ही इज़ इंटरेस्टेड एंड ही इज़ अवेयर ऑफ अबाउट द कंपनी, द विजन एंड ऑल, जस्ट द बेसिक थिंग्स, नॉट वेरी मच डेप की उनकी कितने अकाउंट हैं, क्या हैं वो, बस नहीं, जिस बेसिक ऊपर से. हाँ नहीं, तो वो हुआ. एंड देन ही स्टार्टेड लुकिंग एट माई रेज्यूमे. सो उस रेज्यूमे में ड्यूरिंग दिस पीरियड, जबकि मेरे मल्टीपल रिजेक्शंस हो रहे थे, आई
continuously was working on startups and with teams front end back end. मैं काम कर ही रहा था because I knew कि अगर मेरी CPI कम है then I should have something more to leverage, and that was my experience in the hackathons and the continuously ऐसे part. So उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या है, तो मैंने प्रोजेक्ट एक्सप्लेन किया. I had all the links of the live links, the GitHub links of the projects and all, and he was very much impressed कि एक एक चीज़ की मैंने प्रूफ दिया था, GitHub लिंक दिया था. GitHub लिंक में बहुत अच्छी रीडमी फाइल बना के डाला था. कैसे बनाया था, आई थिंक इट AI anything, but it was my knowledge. So I think you have to use AI tools as well to make it look good. So readme files बहुत अच्छे बने थे, live link थे, deployed link थे. So that made an impression and he was also impressed by that. Now the major factor in my interview was Kafka. Now he started discussing about the AI/ML stuff. मेरे रिज्यूमे में एक प्रोजेक्ट था जो कि हम लोगों ने IIT दिल्ली के हैकाथॉन में बनाया था, एंड वी केम लाइक नेशनल फाइनलिस्ट ऑफ टॉप 7 इन इंडिया. वी वर 7th ओनली, दैट्स व्हाई हम बोलते कि टॉप 7 में आए थे. पर उस पर AML स्टफ था. देन वी डिस्कस्ड अ लॉट अबाउट द AML एंड देन वी हैड अ लॉन्ग डिस्कशन ऑफ AML. बहुत लंबा चला था ये, बहुत छोटी छोटी चीज़ें, बेसिक चीज़ें, बड़ी चीज़ें, द फाउंडेशंस एंड ऑल सब. एंड इट वेंट वेल क्योंकि मैंने जो लिखा था मैंने उसकी बहुत अच्छे से तैयारी करके रखी थी, एंड आई हैड सम प्रायर एक्सपीरियंस एज वेल. सो वो हो गया. नाउ द मेजर फैक्टर इन माई रेज्यूमे, now the major thing that got me selected was Kafka. So I was the team leader of the Smart India Hackathon finalist. जो हमारी टीम थी, we were the finalist of 5. We went to the grand finale of Smart India Hackathon 2024 as well. So in that project we had used Kafka, and luckily जो मेरे interviewer थे, he was on the Kafka team of the company. So he was very much डिलाइटेड एंड एक्साइटेड टू सी कि मैं भी काफका पे काम कर रहा हूँ. मैंने बताया कि मैं बहुत सारी चीज़ों पे काम करता हूँ एंड इट इज़ वन ऑफ देम, और मैंने जस्ट लर्निंग स्टार्ट की है. ऐसा नहीं कि मेरे को बहुत आता है, क्योंकि मैं फंस जाता कि समवन हु इज़ वेरी मच एक्सपीरियंस, अगर उनसे अगर मैं बोल देता कि हाँ मुझे बहुत ज़्यादा आता है, मुझे नहीं आता था. तो मैंने ऑनेस्टली बताया कि ये आता है, एंड ही स्टार्टेड आस्किंग मी अबाउट द काफका, द इंटरनल वर्किंग्स एंड टॉपिक्स, एंड कैसे उसको यूज़ करते हैं, कैसे क्लाउड्स एंड ऑल. And I think I had a good foundation of that, so I told them जो भी मुझे मालूम था, and we had a very good productive discussion on that. तो ये over हो गया. Then we also discussed on a lot of REST APIs, SOAP protocols, HTTPS, status codes and all. I think it was more of a backend type of role. So क्योंकि मेरा resume मैंने उनको बताया था कि मुझे front end भी आता है, back end भी आता है, but I had more experience working on backend. So it is very important to tell the interviewer what are your strengths and what weakness. नहीं बताना है कि उनको ऐसा बताना है कि मुझे दोनों आता है, बट मुझे इसमें ज़्यादा एक्सपीरियंस है. ऐसा नहीं कि मुझे ये काम आता है, ये ज़्यादा आता है. That is not the good way. You have to tell it diplomatically, to be honest. So interview over होता है, मैंने उनसे feedback मांगा, and the feedback came कि बाकी सब सही था, but I was a little like not very much confident. So और मुझे लगा था कि मैं कई बार थोड़ा हड़बड़ा गया था, क्योंकि I think it was a big opportunity for me, last chance है जो है. इंटरव्यू ओवर होता है, मैं तो बोला कि बहुत अच्छा गया, हो जाएगा जैसे भी. रात के 11 बजे 12 बजे एक लिस्ट आती है और उसमें मेरा नाम नहीं होता है, and I was heartbroken again. ऐसा तो नहीं है कि पहली बार हो रहा है, पर my name was not there, and I sat there. मैंने सब फाड़ दिया, जो भी मैंने एक वाइट बोर्ड पे और चार्ट पेपर पे लिखे थे कंपनीज, ये वो मैंने सब फाड़ दिया. अब कुछ नहीं हो सकता. बहुत मेहनत कर लिया, बहुत काम कर लिया, कुछ हो गया, कुछ नहीं हो रहा है. I think it was the lowest moment. And वही होता है कि it all sums up the integration of something DX. That DX matters because
integration of dx is x, and you get the whole piece. And at 1:20 a.m. the second list came, and my name was on the top of that list. I was very much happy because a student who had made a lot of mistakes but has not given up and have continuously worked on his strengths, on his weaknesses, on startups, on applied on hackathons, applied off campus and all. जो भी कर सकता था सब किया to get that leverage. I think nothing is impossible. You just have to be your own guide. I am here just to tell you my experience, so that कि आप उससे कुछ चीज़ें चुन सको, चूज कर सको, और जो मे भी शायद वो गलतियाँ आप ना करो. So that was the whole, like, the moral of the story.